हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू जेमिति आईएएस यूट्यूब चैनल। हमने 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करा था। पिछले पार्ट में मैंने आपको 40 क्वेश्चंस करा दिए हैं और आज हमने 40 के आगे बढ़ना है। तो लेट्स बिगिन विद आवर क्लास। लास्ट के 40 क्वेश्चंस पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे तो हमारा पूरा पेपर सीसैट का कंप्लीट हो जाएगा 2023 का। ठीक है, तो चलते हैं 41st क्वेश्चन पे। पैसेज आएगा ऑफ कोर्स। Again, what you are going to do, pause the video, read the passage and then try doing the questions with me. मैं भी पढ़ रही हूँ तब तक, ठीक है। Scientists study the vernal window transition period from winter to the growing season. They found that warmer winters with less snow resulted in a longer lag time between spring events and a more protected vernal window. This change in the spring timetable has ecological, social, economic consequences for agriculture, fisheries, and tourism. As the ice melts early, the birds don't return, causing a delay or lengthening in springtime ecological events. ओके तो इसका मतलब ये है कि अगर विंटर कम पड़ती है, कम ठंडी होती है, वार्मर होती है, तो जो स्प्रिंग टाइम है वो लैग कर जाता है, वो थोड़ा लेट आता है फिर स्प्रिंग। ठीक है, विद द पैसेज क्या अज्यूम कर सकते हैं हम? ग्लोबल वार्मिंग इज कॉजिंग स्प्रिंग टू कम अर्ली एंड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। अर्ली नहीं हो रहा, लैग हो रहा है, डिले हो रहा है स्प्रिंग में। देखो, देयर इज अ लॉन्गर लैग टाइम बिटवीन स्प्रिंग इवेंट्स एंड अ मोर प्रोटेक्टेड वर्नल विंडो। ठीक है, अर्ली स्प्रिंग एंड लॉन्गर पीरियड ऑफ स्प्रिंग इज नॉट गुड फॉर बर्ड पॉपुलेशन। दोनों ही एजम्पशन हम अज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है, दोनों ही गलत है, नीदर वन नॉर टू। चलिए पैसेज नंबर 2 फटाफट से रीड करेंगे। A global analysis of nitrogen use efficiency, a measure of the amount of nitrogen a plant takes in to grow versus what is left behind as pollution, says that using too much fertilizers will lead to increased pollution of waterways and the air. Currently, the global average of nitrogen use is efficiency is approximately 0.4, meaning 40% of the total nitrogen added to the crop plant goes into the harvested crop, while 60% is lost to the environment, says a study. More than half the world's population is nourished by food grown with fertilizers containing synthetic nitrogen, which is needed to produce high crop yield. Plants take the nitrogen they need to grow, and the excess is left in the ground, water, and air. This results in significant emissions of nitrous oxide, a potent greenhouse and ozone depleting gas, and other forms of nitrogen pollution, including eutrophication of lakes and rivers and contamination of river water. चलो, मोस्ट लॉजिकल, रैशनल और क्रूशियल मैसेज बताना है, क्या कह रही है। An enhanced efficiency in the use of nitrogen is imperative for both the food production and environment. Production of synthetic nitrogen cannot be stopped. देखो, cannot be stopped, extreme word आ गया, हटा दो। Alternatives to crop that require excess of nitrogen should be identified and cultivated. ऑल्टरनेटिव्स निकालने चाहिए एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन के लिए, ये हम अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन मैसेज ये नहीं था। कन्वेंशनल agriculture using synthetic fertilizer should be replaced with agroforestry, ecosystems and organic farming, ये भी हम नहीं कह सकते। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा ठीक लग रहा है मैसेज, वो यही है कि एफिशिएंसी बढ़ानी चाहिए हमें यूज ऑफ नाइट्रोजन की। ठीक है, चलिए पैसेज नंबर 3 रीड करेंगे फटाफट से। अलॉन्ग विथ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, क्लाइमेट जस्टिस इज रिगार्डेड एज अ सिग्निफिकेंट प्रिंसिपल इन एनवायरमेंटल पार्लेंस। बोथ द प्रिंसिपल्स हैव बियरिंग ऑफ political and economical choices of the nation. So far in our climate change summits or compacts, both the principles have eluded consensus among nations. Justice in the judicial sense is well defined. However, in the context of climate change, it has scientific as well as socio-political connotations. A crucial question in the next few years will be how resources, technologies, and regulations are used to support the victims of the climate change. Justice in climate is not confined to actions relating to mitigation, but includes the wider notion of support for adaptation to
climate change and compensation of loss and damage. ओके तो क्वेश्चन आता है हमारा मोस्ट लॉजिकल रैशनल क्रूशियल मैसेज अगेन. क्लाइमेट जस्टिस शुड बी इनग्रेन्ड इन डिटेल विद द रूल्स ऑफ ऑल द न्यू क्लाइमेट कॉम्पैक्ट अग्रीमेंट्स. ये तो नहीं बोला है. एनवायरमेंटल रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड एक्सप्लॉयटेड अक्रॉस द ग्लोब. ओके. There is an impeding issue of dealing with huge amount of climate change victims, climate refugees. इसके बारे में कोई बात नहीं हुई है, सी हटा दो यहाँ से. Climate change in all its connotation is mostly due to developed countries and therefore their share of burden should be more. क्या इस बारे में हमने कुछ बोला है? Developed और developing nations के बारे में. यहाँ पे डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस के बारे में कुछ नहीं लिखा गया, तो लास्ट वाला भी हटा दो. ये हम कह सकते हैं एनवायरमेंटल रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड एक्सप्लॉयटेड अक्रॉस द ग्लोब. ठीक है. चलिए. Question number 44. The principal P becomes Q in 1 year when compound half yearly with R rate of value, annual rate of interest. If the same principal P becomes Q in 1 year when compounded annually with S rate of interest, तो हमें इसका वैल्यू निकालना है. मतलब Q ही बन रहा है तो अमाउंट जो है वो इक्वल है. ठीक है. तो अमाउंट का क्या होता है फॉर्मूला? P 1 प्लस R बाय 100. लेकिन आर हम क्या कर रहे हैं? हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं, तो आर बाय 2 लेंगे और इसको स्क्वायर करेंगे. और फिर हमने पी को ही दूसरे उसमें क्यू एस रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है और एक ही साल के लिए लिया, तो इसमें स्क्वायरिंग नहीं होगी. ठीक है. सिंपल सी बात है, दोनों साइड से पी कट जाएगा. नाउ वी हैव हेयर स्क्वायर और यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 1 प्लस आर बाय 200 का स्क्वायर और यहाँ पर आ रहा है 1 प्लस एस बाय 100. ठीक है. हमें रिलेशन बताना है कि पी और आर की वैल्यू क्या होगी. ओके. व्हेन यू टेक इट लाइक दिस, अगर हम इसमें पी और आर वो एस और आर की वैल्यू कुछ इक्वल रख दें अगर, ठीक है, पी और आर की वैल्यू इक्वल रख दें. लेट्स से कि 10% है पी और एस की वैल्यू. सॉरी, क्या पी कहाँ से आ रहा है? आर और एस की वैल्यू में 10% रख रही हूँ. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 मतलब 10 बाय 200 1 बाय 20 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय 10 का प्लस करना है बस. तो ये आ गया 11 बाय 10 दैट इज 1.1. अब इसकी वैल्यू निकालो. 21 बाय 20 का स्क्वायर कर रहे हैं हम. पहले तो इसी का आप वो ले लो, डेसिमल में कन्वर्ट कर लो तो इजी रहेगा उसको सॉल्व करना. ठीक है. तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10. ठीक है. और इसका स्क्वायर कर रहे हैं. अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो व्हाट वी विल गेट इज 105 का स्क्वायर करना है. फाइव 2 10 1 1. और हमें डेसिमल लगाना है 4 के बाद. तो 1.1025 1.1025 आएगा. तो मतलब बड़ा आ रहा है ना, इससे तो बड़ा ही है. तो जो वैल्यू है वो बड़ी आ रही है. तो इसका मतलब ये होगा कि अगर इन दोनों को इक्वल होना है तो आर की वैल्यू जो है वो छोटी होनी पड़ेगी. छोटी करेंगे तभी तो इक्वल आएगा. अभी आर तो बड़ा हो रहा है. ठीक है. ओके. How many natural numbers are there which give the remainder 31 when this is divided by these natural numbers? ऐसे कितने numbers हैं?
तो मतलब 1186 में से, और 31 से बड़े ही होंगे तभी 31 रिमाइंडर आएगा, है ना। 31 एक तो माइनस कर दो इसमें से, यहाँ आएगा 5511, ठीक है। 5 से तो जा ही रहा है, 5 2 10, 5 3 15, 5 1 5, बट हमें चाहिए 31 से बड़ा, ठीक है। और ये नंबर 3 से चला जाएगा, इसको 15 कर लो, और 3 7 21, 3 7 21, ओके। नाउ वी आर गेटिंग दिस 70, एक तो नंबर आ गया 77 जो कि 31 से बड़ा है, एक नंबर आ गया 231, ठीक है, दो नंबर्स हो गए। अब इसको हम 7 इंटू 11 कर सकते हैं, तो पहले 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 5 से 35, 3 105, 105 आ जाएगा, ओके। और फिर 11 से मल्टीप्लाई करके देखो, 55 5 11 1 11, 165, तो 165 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास नंबर्स आए हैं 4, इसके अलावा भी कोई पॉसिबल है क्या? जो कि 31 रिमाइंडर देगा। अच्छा, इसका हम डबल कर सकते हैं क्या? Okay, I'm getting 4 only. Why I'm getting only 4? अच्छा, 15 और 77 में आप इसको 3 और 5 करो, और इसको करो 7 और 11, ठीक है। तो 5 और 7 भी ले लेंगे, 35 भी आ जाएगा, ठीक है। 3 और ये ले लेंगे, 33 भी आ जाएगा, ठीक है। 3 7 से 21 होता है, और 5 और 11 भी ले सकते हैं, 55 भी आ जाएगा एक नंबर। दोनों टाइप के कॉम्बिनेशंस लेने पड़ेंगे ना, 55 भी एक नंबर आ जाएगा। अब मेरे हिसाब से ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 आर द नंबर्स, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 46 करेंगे। लेट पी पी क्यू क्यू एंड आर आर बी द 2 डिजिट नंबर्स वेयर पी सबसे छोटा है और आर सबसे बड़ा है, और इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो टी टी 0 आएगा, वेयर टी टी इज अ 3 डिजिट नंबर एंडिंग विद अ 0। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं पी की, कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं क्यू की, ओके। सो व्हाट डू वी वांट हेयर इज कि अगर यहाँ पे मैंने लिया 22, यहाँ पे लिया हमने 33, तो यहाँ पे हमें 55 लेना पड़ेगा, क्योंकि तभी यहाँ पे 0 आएगा पीछे, है ना। 10 आ गया यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा 5 और 10 और 1 11, एक तो यही कॉम्बिनेशन बन गया भाई, ठीक है। अब 22 की जगह लेट्स टेक 11, रिपीट ही तो करना, और छोटा ले लेते हैं। मैंने ले लिया 11, एक ले लिया 44, और एक ले लिया 55 अगेन, ठीक है, उसी में ही ऐड कर दिया है, तो ये 10 आएगा, ये 1 कैरी ओवर, 9 10 11, ग्रेट, वेरी गुड। ओके, अब मैं ले लेती हूँ 11 66 और 33, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन ले लो, ये अगेन 10 आएगा और यहाँ पे 11 आएगा, ठीक है। 3 कॉम्बिनेशन हो गए। फिर अगर हम लें, ऐसे तो बहुत सारे बन सकते हैं, तो p की वैल्यू 22 हो सकती है और 11 हो सकती है। अभी हमने 22 और 11 दो पॉसिबिलिटीज़ चेक करी हैं, ठीक है। और q की क्या पॉसिबिलिटीज़ आ गई, 33 और 44, इसी के अकॉर्डिंग, है ना। अब एक कॉम्बिनेशन ले लेते हैं 33 का, 33 p ले लिया हमने, तो हमें इससे बड़ा ही लेना पड़ेगा, 44 लेना पड़ेगा, और ये 7 होता है, तो हमें t जो आर आर लेना है वो भी 33 लेना पड़ेगा, बट 33 पॉसिबल नहीं है, राइट। तो ये कॉम्बिनेशन ही पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हम 33 पे तो जा ही नहीं पा रहे, p को हम फिर 11 और 22 के अलावा उससे बड़ा नंबर रख ही नहीं सकते।
11 और 22 के अलावा। तो सिर्फ जो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ p है वो 5 नहीं है, सिर्फ 2 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। और q की क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, 22 अगर हमने लिया है तो 33 की जगह 44 अगर ले लें तो 6 हो जाएगा, और फिर हमें अगेन 44 लेना पड़ेगा 11 के लिए, 10 बनाने के लिए, है ना, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा बड़ा नंबर ले लें, लेट्स से कि मैंने p को ही 55 ले लिया है, ठीक है, q हमने ले लिया 66, ये पहले 11 हो गया, और जो r है वो मैंने 99 ले लिया है, तो ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा 3 डिजिट से, आई थिंक। तो इट विल गिव अस 1120, 2 कैरी, ये बन रहा है आपका 22 आ सकता है, 55 भी आ सकता है भाई, ओके। और q को हम 66 ले सकते हैं, ठीक है। और बड़ा नंबर ले सकते हैं क्या, बताइए। सिक्सटी सिक्स 77 ले लिया, 13 हो गया, फिर हमें 7 लेना पड़ेगा, तो नहीं हो सकता। अगर 88 ले लूँ तो मैं, तो और छोटा लेना पड़ेगा, नहीं, पॉसिबल नहीं है। फिर भी 5 वैल्यूज़ तो आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर मैंने 33 लिया और फिर ले लिया मैंने 77, तो भी नहीं हुआ। एट्टी एट ले लें यहाँ पे, q की वैल्यू 11 हो गए, फिर 99 ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 220, ठीक है। तो 33 ले सकते हैं, और यहाँ पे 88 ले सकते हैं। आई थिंक दैट्स इट। और अगर हम 44 लें तो 77 और 99 ये भी हो सकता है। आगे भाई 44 और यहाँ पे 77 ले लिया हमने q की वैल्यू, और 44 के साथ 88 भी ले सकते हैं, नहीं ले सकते, 55 तो कंसिडर कर ही लिया है मैंने फिर, ठीक है। तो वी आर गेटिंग 1 2 3 4 5 वैल्यूज ऑफ p एंड 5 वैल्यूज ऑफ q। तो ओनली 1 इज ट्रू, सेकेंड q की भी 5 ही वैल्यूज हो सकती हैं, उससे ज़्यादा नहीं होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स लेस देन 2000 फॉर्म्ड बाय यूजिंग दिस वेयर नन ऑफ द डिजिट्स आर रिपीटेड। सम ऑफ ऑल द नंबर्स 2000 से छोटा होना चाहिए, तो 1 से तो शुरू हो गई, 1 2 3 4, ठीक है, 1 3 2 4, 1 4 3 2, 1 4 2 3, 1 3 4 2 और 1 2 4 3, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब इन सबको ऐड कर दो आप, 3 2 बार है, 2 2 बार है, 4 2 बार है, तो 6 8 6 4 18 आ गया, 18 यहाँ कैरी करेंगे, 19 यहाँ आएगा, और अगेन 19 यहाँ आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 7 9 9 8। A part is the final answer. Question number 48, what is the number of selections of 10 consecutive things out of 12 things in a circle taken in a clockwise direction? 10 consecutive things हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। हमने जो सिलेक्शन करा वो लेट्स से कि हमने यहाँ से शुरू करा और यहाँ पे एंड करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ एंड करना पड़ेगा, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी हो गई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही जाना है, एक यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ एंड करेंगे, ठीक है। एक यहाँ से शुरू करा, यहाँ एंड करा, 3 पॉसिबिलिटीज हो गई, 4, ऐसे ही आप करते चले जाओगे, 5 6 7 8 9 10 11 12
एंड देन तेरा अगेन वापस उसी जगह पे पहुंच जाएगा, तो 12 ही हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। 12 पॉसिबिलिटीज हो गई। इफ टुडे इज संडे, विच डे विल बी एग्जैक्ट ऑन 10 टू द पावर 10th डे। तो 10 टू द पावर 10th को आपने डिवाइड करना है 7 से, ठीक है। 7 से आप डिवाइड करते चले जाओगे, लास्ट में रिमाइंडर आएगा 3, और जो 3 रिमाइंडर आएगा आपको उसका प्लस करना है, संडे में 3 ऐड कर दो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, कंप्लीटेड। There are 3 traffic signals. Each signal change color from green to red and then red to green. The first signal takes 25 seconds, the second takes 39 and the third takes 60 seconds. ठीक है, तो पहले ग्रीन से रेड हुआ 25 सेकेंड्स में, फिर रेड से ग्रीन हुआ 30 सेकेंड्स में, और फिर उसके बाद 60 सेकेंड्स में। फ्रॉम द ड्यूरेशन ऑफ ग्रीन एंड रेड कलर्स आर सेम। ओके, द फर्स्ट सिग्नल टेक्स 25 सेकेंड्स, द सेकेंड सिग्नल टेक 39 सेकेंड्स। अच्छा, 3 ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, एक 25 सेकेंड्स में चेंज होता है, दूसरा 39 सेकेंड्स में, तीसरा 60 सेकेंड्स में। अगर वो सारे के सारे ग्रीन हुए हैं 2 बजे, ठीक है, तो वो नेक्स्ट टाइम कितने बजे चेंज होंगे? तो 25, 39 और 60 का हमने एलसीएम निकालना है बेसिकली, ठीक है। दिस इज 13 इंटू 3, दिस इज 5 इंटू 5 एंड दिस इज 5 इंटू 3 इंटू 4। तो हमने क्या करा, 5 इंटू 5, 3 इंटू 3 इंटू 4 करा, ठीक है। ये हो गया आपका 20, ये हो गया आपका 15। कितना आया? 300। 300 को 3 से मल्टीप्लाई करो 900, तो 900 सेकेंड्स हमारा एलसीएम बन रहा है। लेकिन वो जो टर्न होगा वो रेड टर्न होगा इकट्ठा, ठीक है। तो इसका डबल लेना पड़ेगा, मतलब 1800 लेना पड़ेगा। डबल क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि हम रेड पे पहुंचेंगे अभी, ठीक है। 1800 को 60 से डिवाइड करा, ये हो गए 30 मिनट्स। 1800 सेकेंड्स थे, उसको हमने 60 से डिवाइड करके उसके मिनट्स बनाए, तो वो आ गया 30, ठीक है। तो आप 30 मिनट्स ले लो, आपको जो यहाँ पे सबसे पहले मिलेगा वो 4 बजे को मिल जाएगा, ठीक है। 4 या 4:30, 4:30 पे रेड हो जाएगा फिर से वापस से। चलिए पैसेज पढ़ेंगे। सोर्सिंग फूड फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चरल लैंड्स or uncultivated systems such as forest, wetlands and pastures in addition to agricultural lands enable a systematic approach of food consumption. It allows rural and tribal communities to sustain themselves for the whole year and steer clear and natural disasters and season included shortfalls of agricultural food. Since the productivity of trees is more resilient to adverse weather conditions than animal crop, forest foods often provide a safety net during period of food shortages caused by crop failure. Forest foods also make important contributions during seasonal crop production gaps. तो क्या कहना चाह रहा है? मोस्ट लॉजिकल और रैशनल मैसेज क्या कन्वे हो रहा है? फूड यील्डिंग ट्रीज शुड रिप्लेस अदर ट्रीज इन रूरल। रिप्लेस की बात ही नहीं हुई। फूड सिक्योरिटी कैन नॉट बी इंश्योर्ड इन इंडिया, बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। वेस्ट लैंड और डिग्रेडेड लैंड्स इन इंडिया should be converted into agroforestry systems to help the poor. Agro ecosystems should be developed in addition to along with conventional agriculture. This is the most appropriate answer. यहाँ पे to help the poor आ गया ना, तो ये पैसेज से अलग चला गया है, ठीक है। चलिए यहाँ पे D part is the final answer. Next passage पढ़ेंगे फटाफट से। While awareness on use, misuse and abuse of antibiotics is common knowledge, as is the impact of dosing poultry with antibiotics, the environmental impacts of antibiotics manufacturing companies not treating their waste has scarcely been discussed at any length to seriousness thus far. Pollution from antibiotic factories is fueling the rise of drug resistant infections.
The occurrence of drug resistant bacteria according to the pharma manufacturer plants is well known. एंटीबायोटिक्स की हमें ये तो पता है कि पोल्ट्री पे कैसे इम्पैक्ट करता है एंटीबायोटिक्स, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स क्या है उसके, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज उसको ट्रीट नहीं करती हैं, यूज मिसयूज के बारे में बात हम कर चुके हैं, एंटीबायोटिक्स के ऊपर है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल मैसेज कन्वेड बाय द पैसेज. It is necessary to put proper effluent treatment protocols in place. It is necessary to promote environmental awareness among the people. Spread drug resistant bacteria cannot be done away with. And it is inherent in modern medical care. Pharma manufacturing companies should be set up with remote rural areas away from crowded towns and cities. Spread of drug resistant bacteria cannot be done away with. नहीं, ये तो नहीं हो सकता बिल्कुल, नेसेसरी नहीं है. हमने लास्ट में ये बात करी है, the occurrence of drug resistant bacteria is well known, ऑलरेडी वेल नोन है, तो एजुकेट करने की जरूरत भी नहीं है. अवेयरनेस की जरूरत नहीं है, नेसेसरी नहीं है, पता है लोगों को. देन इट इज नेसेसरी टू पुट प्रॉपर एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स इन प्लेस. हमें प्रोटोकॉल्स लगाने पड़ेंगे तभी बात बनेगी. ठीक है, पैसेज नंबर 3 पढ़ेंगे. बेनिफिट्स ऑफ गुड क्वालिटी स्कूल एजुकेशन एक्रू ओनली व्हेन द स्टूडेंट्स कंप्लीट एंड लीव स्कूल आफ्टर हैविंग एक्वायर्ड द गेटवे स्किल्स. लाइक वन लर्न्स to walk before running. Similarly, one's pick up advanced skills only after picking the basic foundational skills. The advent of knowledge economy poses new challenges. The one with the severe consequence of having an uneducated workforce will be our inability to keep pace with the global economy. Without a strong learning foundation at the primary level, there can be no improvement in higher education or skill development. फाउंडेशन बिल्ड करने की बात करी जा रही है. क्रक्स क्या है? टू बिकम ग्लोबल पावर, इंडिया नीड्स टू इन्वेस्ट इन यूनिवर्सल क्वालिटी एजुकेशन. India is unable to become global power because it is not focusing on knowledge economy. Our education system should focus more on imparting skills during the higher education. Parents and many school children are illiterate and ये तो बात ही नहीं है बिल्कुल भी. हमें ये बात करना है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम को फोकस करना चाहिए स्किल इम्पार्ट करने में. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54. 40 बच्चे हैं, एक सर्कल में खड़े हुए हैं. एक ने बोला वन ऑफ देम हैज अ रिंग. एक के पास रिंग है, वो क्लॉकवाइज पास करी जा रही है. चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 को पास करता है, 2 4 को पास करता है, 4 7 को पास करता है. After how many such changes will the ring will be in the hand of child 1 again? 40 चिल्ड्रन है. 1 से जाएगा 2 पे, 2 से जा रहा है 4 पे, 4 से जा रहा है 7 पे, फिर 11 आएगा. 11 के बाद आप 5 लेंगे तो 16, 16 के बाद 6 लेंगे तो 22, 22 के बाद 8 लेना है 30, 30 के बाद 10 लेना है 40. 40 चिल्ड्रन हो गए. 40 के बाद 11 लेंगे मतलब 11वें पे आ जाएगा. फिर 12 लेना है मतलब 23. फिर हमने 13 लेना है मतलब 36, राइट. देन हमने लेना है 14. 1 2 3 4 5 6 7. Oh worry, sorry. This is 6, this should be 7, that means 29. This should be यहाँ गड़बड़ हो गई यार. 29, then 8 will be 38, then 9, नाइन होगा. 9 हो गया है ना. 6, this is 7, this is 8,
8 विल बी 37, क्या कर रही हूँ मैं, 37, देन 9 विल बी 46 होगा, लेकिन 40 तक बच्चे हैं तो 6 पे पहुंचेगा। देन आपने 10 लेना है 16, देन आपने 11 लेना है 27, 12 लेना है 39, फिर 13 लेना है तो वो आ जाएगा 12वें बच्चे पे। फिर हमने लेना है 14, 26, 14 के बाद 15, दैट विल बी 1। अब पहुंचा है 1 पे। कितने टर्न्स हो गए, कितने पासेस हो गए, 15 है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज द मिडिल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। z 2 बार लिया है, y 3 बार लिया है, x 4 बार लिया है, w 5 बार लिया है, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। और आपने अब हम मुझे बताना है कि व्हाट विल बी द मिडिल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। देखो 2 3 4 5 ऐसे करके नंबर बढ़ता चला जा रहा है, तो हमने जाना है 26 तक, है ना। 1 सम ऑफ n टर्म्स 26 हो गया, n प्लस 1 बाय 2, ठीक है। इसको काटो 2 से, दिस विल गिव यू 54। 54th टर्म जो होगी वो हमारी मिडिल में आएगी, ठीक है। अब सम ऑफ दैट टर्म विल बी 54 और हमें चाहिए n। ऐसे दो कौन से कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 108 के आसपास कोई नंबर आएगा, बताइए। 10 इंटू 11 है ना, 110 देता है वो। तो मतलब क्या है कि 10 बार जो रिपीट हो रहा है नंबर वो ही मिडिल टर्म में आ रहा है। और 10 बार कौन सा नंबर रिपीट होगा, नो 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 नॉट आई, इट विल बी मोर देन आई। मतलब z का वैल्यू 2 है ना, हमें 10th नंबर पे देखना है। z का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 3 है, x का वैल्यू आपका 4 हो गया, और मतलब ऑपोजिट हो गया ना, ऑपोजिट प्लस 1 हो रहा है ना। तो i का ऑपोजिट होता है e का ऑपोजिट p होता है, v होता है सॉरी, f का u होता है, i का r होता है, ठीक है। तो i का r होता है 9, तो r प्लस 1, your middle term is going to be नंबर बड़ा नहीं होना चाहिए। चलिए आई विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेटमेंट हमें बताना है कि क्या p बड़ा है q से। p और q जो है वो 0 से बड़े हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है। ये दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। एंड p का जो स्क्वायर है वो ग्रेटर देन q का स्क्वायर है। इससे भी हम बता ही नहीं सकते, दोनों क्वेश्चन जो दोनों स्टेटमेंट है वो सफिशिएंट नहीं है, कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग ईदर।
नहीं नहीं, बोथ टुगेदर भी नहीं है, किसी भी तरीके से हम इसको आंसर नहीं कर सकते, इनसफिशिएंट है डेटा। क्वेश्चन नंबर 57, अगर p प्लस क्यू माइनस आर जो है वो बड़ा है p माइनस क्यू प्लस आर से, जो इंटीजर्स हैं, तो क्या हमें बताना है कि क्या ये चीज़ ट्रू है। हम कह रहे हैं कि p माइनस क्यू जो है वो पॉजिटिव है, p माइनस क्यू का मतलब पॉजिटिव का मतलब p इज ग्रेटर देन q, और r माइनस p माइनस r इज नेगेटिव, मतलब r इज ग्रेटर देन p, तो मतलब r है फिर p है फिर q है, ये आपका सीक्वेंस है। तो अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे और r माइनस करोगे तो क्या वो बड़ा हो जाएगा p माइनस क्यू माइनस करने से प्लस r से। हम कह ही नहीं सकते इस चीज को, तो r तो कितना भी बड़ा हो सकता है ना, कैन नॉट बी आंसर्ड। इन अ पार्टी 75% took tea, 75% took tea and 60% took coffee, 15% जो थे जिन्होंने दोनों चीजें ली। नो वन टेकिंग मिल्क टेक्स टी, ईच पर्सन टेक्स एटलीस्ट वन ड्रिंक। ओके, टी कॉफी और मिल्क तीनों चीजें हैं क्या, तीन चीजें हैं इसमें लिखी हुई कि एक पार्टी में 75% ने चाय ली, 60 लोगों ने कॉफी ली, और 15 लोग ऐसे थे जिन्होंने दोनों टी और कॉफी दोनों चीजें ली। ठीक है, तो 75 प्लस 60 माइनस 15 करोगे अगर आप, तो आपको 120 दिख जाएगा। 120 टोटल लोग रहे होंगे। 50% टुक मिल्क, मिल्क कितने कर सकते हैं, हाउ मेनी पर्सन अटेंडेड द मिल्क। अगर 50 लोग जो थे वो मिल्क ले रहे थे, तो वो चाय वाली कैटेगरी में तो नहीं हुए, लेकिन वो कॉफ़ी वाली कैटेगरी में तो हो सकते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंडेड द पार्टी इज 5 times द नंबर ऑफ पर्सन हु टुक मिल्क ओनली। हम नहीं कह सकते कि सिर्फ मिल्क वाले कितने लोग हैं, दिस इज ऑल्सो इनसफिशिएंट डेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 59, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट। व्हाट इज नंबर, बताना है कि नंबर क्या है। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स, तो 1 2 3 हो गया, इसका सीक्वेंस देखना पड़ेगा। द नंबर इज डिविजिबल बाय सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर, मतलब कि 6 से डिवाइड हो रहा है। अगर ये 6 से डिवाइड हो सकता है तो 132 हो सकता है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चंस यूजिंग बोथ, ईदर और से तो काम नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड। जो सबसे बड़ा चाइल्ड था, मतलब ई, डिफर बाय 2 years, हर किसी का 2-2 साल का गैप है। जो सबसे बड़ा है वो 3 times है यंगेस्ट के। द एवरेज एज ऑफ द चिल्ड्रन इज 8 years, तो ये 8 साल का हुआ, ये 6 का, और ये हो गया आपका 4 साल का, और ये 10 और ये 12। ठीक है, 3 times द यंगेस्ट, बन गई बात। वैसे तो हमें एवरेज से ही हो जाएगा, स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट। कैन बी आंसर्ड यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट्स अलोन। हाँ ठीक है, इज द पार्ट। नाउ पैसेज आ गया, फटाफट से रीड करेंगे। द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस इज इलस्ट्रेटेड बाय द स्टोरी ऑफ Buridan's as Jean Buridan, the 14th century philosopher, wrote about free will and the inability to choose due to numerous choices and uncertainties. In this story, a donkey stands between two equally appealing stacks of hay, unable to decide which one to eat. It starves to death. Changes in technology and innovation, such as smartphones and tablets, only exacerbate our glut of choices. Constant connectivity and overconsumption of real-time data and social media can leave little room for self-reflection and rest, making decision more difficult. Life is about choices. Many people are overwhelmed with attractive life choices, yet find themselves unhappy and anxious. मोस्ट लॉजिकल मैसेज क्या कहते हैं हम, कि क्या मोस्ट लॉजिकल मैसेज हो सकता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी unfeebles societal structure and makes life difficult.
Modern life is full of uncertainties and endless difficult choices. It We are influenced by the opinion of others. Nahi. In our lives, having too few choices may not be a good thing, but having too many choices can be equally as difficult. This is the most appropriate answer. Here we go. Question number 62. Again, there is a passage. Read करेंगे फटाफट से. Household finance in India is unique. We have a tendency to invest heavily in physical assets such as gold and property. Steps to encourage the financialization of saving are critical. To a populace accustomed to traditional processes will not simplify jump into financialization. Hurdles to change include onerous bureaucracy, a skepticism of organized financial institution, a lack of basic information about which of the myriad services and providers is best for each family and how one can make the transition between them if necessary. Okay, financialization of household savings. Which of the following statement best reflect the solution that are implied by the passage? The flexible environment if needed to develop solutions. Households need customized solutions. Innovation of financial technology are required. सब चीज़ें चाहिए हमें, सब चीज़ें चाहिए भाई. Next passage, passage number 3. Pharmaceutical patents grant protection to the patentees for the duration of the patent term. The patentees enjoy the liberty to determine the prices of medicine, which is time limited to the period of monopoly, but could be unaffordable to the public. Such patent protection offered to the patentees is believed to benefit the public over the longer term through innovation and research and development, although it comes at a cost. In the nature of higher prices for the patented medicine, the patent regime and the price protection, though a legally validated high price for the medicine during the currency of the patent, provide the patentee with a legitimate mechanism to get return on the cost incurred in innovation and research. क्या assumptions बना सकते हैं हम? Patent protection given to the patentees put a huge burden on the public's purchasing power in increasing the patented medicine. In assessing dependence on other countries for countries के बारे में बात ही नहीं हुई है, assume भी नहीं कर सकते हम लोग. Providing medicines to the public at affordable price is a key goal. इसके बारे में बात नहीं हुई. Government need to find an appropriate balance between right of patentees and the requirements of the patients. 1 and 4 I'll go with the following assumptions that are valid. Okay. Next question, next passage. फटाफट से read करेंगे. India should ensure the growth of digital economy while keeping personal data of citizens secure and protected. No one will innovate in a surveillance-oriented environment or in a place where an individual's personal information is compromised. The ultimate control for data must reside with the individuals to generate it. They should be enabled to use, restrict, or monetize it as they wish. Therefore, data protection laws should be enable the right kind of innovation, one that is user-centric and privacy-protecting. Based on the following assumptions, क्या बना assumptions बताने हैं? Protection of privacy is not just a right; it is a value of economy. There is a fundamental link between privacy and innovation. Both are correct. In an examination, maximum marks for each of the 4 papers, namely PQRS, are 100. Marks scored by the student are in integers. A student can score 99% in different ways. What is the value of n? 99% उसके मार्क्स कैसे आएंगे? अगर वो 100 ले लेगा और एक में 99 ले लेगा, ठीक है. इसको कितने तरीक़ों से आप इसको बना सकते हो? 4 तरीक़ों से बना सकते हो. किसी भी पेपर में 99 और बाकी सब में 100 हो गए, ठीक है. ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि 2 पेपर्स में 99 आ गए, पर 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना. आपके 400 का 99, सॉरी, तीनों पेपर में 99 आएंगे तो होगा. एक तो ये हो गया. 1 सेकेंड. अगर चारों पेपर में आपके 99 मार्क्स आ गए तो आपकी 99% आ गई. ये एक तरीका है, ठीक है.
एक हो सकता है कि एक पेपर में 100 आए, दूसरे पेपर में आपके 98 आ गए, ठीक है, और बाकी 2 पेपर में 99 आ गए। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होती है, कितने पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं इसके, इस 3 तरीके इसके हो गए और 9 वेज हो गए इसके, ठीक है। अगर 98 एक जगह यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, 3 तरीके ये हो गए, चौथा ये हो गया, और फिर 100 को आप 16 टाइम्स आएगा शायद, या 9 वेज होंगे। 98 4 जगह पॉसिबिलिटीज़ हैं, कहीं पे भी 4 जगह पे आ सकता है। अगर 98 यहाँ आया है 1 वे, और बाकी 3 पॉसिबिलिटीज़ इसकी हैं, फिर 98 यहाँ आएगा तो 3 पॉसिबिलिटीज़ इसकी और हो गई, तो 3 4 12 पॉसिबिलिटीज़ हो गई, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि 2 पेपर में 100 आ गए और बाकी 2 पेपर में 98 आ गए। इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं? 4 हो सकती हैं, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी ऐसी है कि एक में 100 आया है, एक में 97 आया है, ठीक है। अब उसको कवर करने के लिए दूसरे पेपर में भी 100 आना चाहिए और एक में 99 आना चाहिए, ठीक है। चार तरीके ये हो गए आपके। 8 तरीके होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। नहीं, और एक हो सकता है कि 3 पेपर में 100 आ गए और एक में आया आपके 96, ठीक है। इसके 4 तरीके हो सकते हैं, ओके। तो दिस विल बी 8, अगर आप इसको चेंज करके देखोगे, प्रोबेबिलिटी लगाओगे तो 8 आएगा। तो इस हिसाब से अभी तक क्या चल रहा है, 20 सबसे बड़ा नंबर, 35 शुड बी योर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 66, अ फ्लैग हैज़ टू बी डिजाइंड विद 4 हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स यूजिंग सम और ऑल द कलर्स रेड, ग्रीन और येलो, ठीक है। 4 हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स बनाने हैं। द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज इन विच दिस कैन बी डन दैट नो 2 एडजेसेंट स्ट्राइप्स कैन बी ऑफ द सेम कलर। लेट्स से कि एक ग्रीन रेड ले लिया हमने, इसके 2 तरीके हो गए। फिर हमने कलर चेंज कर दिया, येलो रेड ले लिया, इसके 2 तरीके हो गए। येलो रेड की जगह पे हम ले सकते हैं ग्रीन और येलो, इसके 2 तरीके हो सकते हैं, ठीक है। एक हम ले सकते हैं रेड, ग्रीन, येलो, रेड, इट कैन हैपन इन 2 वेज, ग्रीन येलो इंटरचेंज हो जाएंगे। इस तरीके का कॉम्बिनेशन 3 कलर्स हैं, 3 तरीकों से हो सकता है, मतलब 3 तरीकों से हो सकता है, मतलब टोटल 6 तरीके हो गए, जिसमें हम 2 कलर्स को सेम रख रहे हैं, ठीक है। और इट कैन ऑल्सो हैपन कि रेड ग्रीन, रेड येलो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। इसके भी 2 तरीके हो सकते हैं, और कलर चेंज करोगे क्योंकि 3 कलर्स हैं, तो टोटल 6 ये भी हो सकते हैं, ठीक है। दैट विल बी द फाइनल आंसर। तो 6 और 6 12 और 6 18 विल बी योर आंसर। चलिए 67, अ रेक्टेंगुलर फ्लोर है, 4 मीटर लेंथ है और 2.2 मीटर ब्रेथ है। नंबर ऑफ टाइल्स जो हैं वो 140 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर की हैं जो उसमें लगनी है। A tile can be placed in any orientation so long as its edges are parallel to the edges of the floor.
what is the maximum number of tiles that can accommodate on the floor? 4 मीटर इंटू मतलब 400 सेंटीमीटर इंटू 220 मीटर, ये उसका पूरा एरिया है, और जो टाइल्स का एरिया है वो है 140 इंटू 60 नॉट डिवाइडेड। जो भी नॉर्मल नंबर ऑफ प्लेसेस आएंगे 3, ये हो गया 11, 20, ये आ गया 7, तो ये आ गया हमारा 220 बाय 21, दैट विल गिव अस 10, है ना। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइल्स कितने अकोमोडेट करे जा सकते हैं? 9 अकोमोडेट करे जा सकते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देयर आर 5 persons, each one of whom has to be assigned one task. Neither P nor Q can be assigned task 1. तो टास्क 1 जो है वो इन तीनों में से ही किसी को मिलेगा, और टास्क 2 जो है वो या तो R या तो S को दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमने मस्ट बी असाइंड टू ईदर टास्क, तो टास्क जो 1 है उसमें अगर हमने R को रख दिया तो टास्क 2 में हमें S रखना पड़ेगा, यहाँ S रखा तो यहाँ R रखना पड़ेगा, ये दोनों इंटरचेंज होंगे। इसके बाद के जो बाकी के टास्क हैं, 3 टास्क 3, 4 और 5, उसमें P, Q और T किसी भी अरेंजमेंट में हो सकते हैं, ठीक है। किसी भी अरेंजमेंट का मतलब हो गया 3 फैक्टोरियल, आपके उसमें वैल्यू आ जाएंगी, मतलब 6 तरीके से इसको अरेंज करा जा सकता है, और 6 तरीके से, और ये 2 तरीके हो गए, तो टोटल 12 वेज हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स वेइंग 2 grams, 5 grams, 10 grams, 25 and 50. To buy 78 grams of coin, one must buy at least 7 coins. 78 ग्राम्स के लिए लीस्ट बनाना है, ठीक है, एट लीस्ट। तो हम 78 के लिए 50 ले लिया, बचा कितना? 28 बचा है। तो 28 में 25 नहीं ले सकते क्योंकि 3 की चॉइस नहीं है हमारे पास, फिर हमें 10 लेना पड़ेगा। दैट विल गिव अस 60, बचा 18, फिर हमें एक और 10 लेना पड़ेगा, तो बचेगा 8, और 8 के लिए दो वाले 3 ले सकते हैं हम, तो 3, 4, 5, 6 से भी चल रहा है काम, तो ये ऑप्शन गलत हो जाती है हमारी, ठीक है। टू वे 78 कॉइन्स वन कैन यूज लेस देन 7 कॉइन्स, लेस देन 7 हम यूज कर सकते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, स्टेटमेंट ये है, कंक्लूजन्स ये है, और पहले निकालो इसका मतलब P इंटू क्यू, P इज नॉट स्मॉलर देन B, Q, तो Q स्मॉलर होगा फिर P से, है ना। P माइनस T, P इज नॉट ग्रेटर देन T, तो P मस्ट बी लेसर देन T, लेस देन इक्वल टू, ओके। T इज नीदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू R, तो P मस्ट बी लेस देन R, ओके। R plus minus, R is neither smaller nor greater than S, तो R must be equal to S। तो क्या Q इक्वल है T के? नहीं, इक्वल नहीं है। S plus Q, S is neither smaller nor equal to, मतलब क्या S बड़ा है Q से? S बड़ा है Q से, yes, only 2 follows। क्वेश्चन नंबर 71, पैसेज आ गया है, फटाफट से रीड करना है हमने। इन इंडिया वाइल द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेजर्ड फॉर पुअर परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी अंडर द कंडीशंस ऑफ राइजिंग स्कूल एंड कॉलेज एनरोलमेंट, इट पेंट्स an inaccurate picture
The reported unemployment rate is dominated by the experience of younger Indians who face higher employment challenges and exhibit greater willingness to wait for the right job than their older peers. The unemployment challenge is greater for people with secondary or higher education, and rising education levels inflate unemployment challenges. Okay, most likely reflect what the author is saying. Enrollment in school and colleges is high, but there is no quality education. Unemployment must be seen as a function for rising education and aspirations of young Indians. There is no labor intensive industries to accommodate. नहीं आ गया. The education system should be properly designed. ये हो गया. चलिए, क्वेश्चन नंबर 72, पैसेज 2. Science by itself is not enough. There must be a force and discipline outside the science to coordinate them and the point to a goal. It is not possible to run a course aright when the goal itself has not been rightly placed. What science needs is philosophy, the analysis of scientific methods, and the coordination of scientific purposes and results. Without this, any science must be superficial. Government suffers precisely like science for the lack of philosophy. Philosophy bears to science the same relationship which statesmanship bears to politics. Movement guided by total knowledge and perspective as against the aimless and individual seeking. Just as the pursuit of knowledge becomes scholasticism when divorced from actual needs of men and life, so the pursuit of politics becomes destructive bedlam when divorced from science and philosophy. क्या मैसेज कहना चाह रहा है भाई? Modern statesmanship needs to be well trained with scientific methods and philosophical thinking to enable them to have a better perspective of their role, responsibilities, and goal. It is not desirable to have governments managed by empirical statements unless well mixed with other who are grounded with learning and reflect wisdom. As the statement bureaucrats are the products of the society, it is desirable to have a system of education in a society that focuses on training its citizens in scientific methods and philosophical thinking from early age. It is desirable that all scientists need to be philosophers as well as to make their work goal-oriented and thus purposeful and useful for the society. This is the most appropriate answer. We are going with the A part. Now passage number 3. The last end of the state is not to dominate men nor to restrain them by fear. Rather, it is so to free each man from fear that he may live and act with full security and without injury to himself or his neighbor. The end of the state, I repeat, is not to make rational beings into brute beasts and machines. It is to enable their bodies and their minds to function safely. It is to lead men to live by and to exercise a free reason, that they may not waste their strength in hatred, anger, and guile, nor act unfairly towards one another. क्या कहना चाह रहे हैं? क्या पर्सनल गोल होना चाहिए हमारा? हेल्थ ऑफ बॉडी एंड माइंड. रिमाइंडर बताना अगर ये डिवाइड हो जाए 6 से. भाई देखो 2 की पावर ओके 2 की पावर 3 लो, दैट इज 8. अगर इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 2 अगेन. ठीक है. सो नाउ वी आर गेटिंग 192. 192 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 3 6 18, 3 4 12, पूरा कट रहा है. तो 2 की पावर 3 अंदर ले लो और बाहर आ गया 64. इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 2 ही आएगा. अब 2 की पावर 64 है. ठीक है. अब इसको 3 से डिवाइड करो. हाउ मच यू आर गेटिंग? 2 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 2 की पावर 21 इंटू 2. ठीक है. अगेन दिस विल गिव यू 2, राइट? रिमाइंडर 2. फिर 3 से काटो 7, फिर 3 से काटोगे तो 2 आएगा.
और फिर 2 की पावर 2 यहाँ बढ़ जाएगी, तो 2 की पावर 3 हो जाएगी टोटल। मतलब बेसिकली इन दी एंड यू आर गेटिंग सी पार्ट एज 3 एज द रिमाइंडर, ठीक है। नेक्स्ट 75th क्वेश्चन, ए बी सी कंप्लीट करना है पूरा सेंटेंस को, पूरा पैटर्न को। ए बी सी डी तक जा रहा है, अगर मैं यहाँ डी रख दूँ, ए बी सी डी, फिर डी दोबारा रिपीट हो रहा है, ए बी, ओके, A, B, B, C, D. Okay. So what we are going to do here is we are going to repeat D first, then we are going to repeat C. देखो A, B, C, D, D, A, B, C, C, D, ठीक है, A, B, B, C, D, और फिर A 2 बार रिपीट हो जाएगा, तो D, D, C, A, D, D, C, A आ रहा है आपका आंसर, D पार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 76, A, B and C, D are 2-digit numbers. Multiplying A, B and C, D with C, D results in a 3-digit number D, E, F. Adding D, E, F to another 3-digit number G, H, I, the results we are getting is 975. If E is 0 and F is 8, then what is the value of A, B and C? तो A, B को हमने मल्टीप्लाई करा है C, D से, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें D, E, F मिल रहा है, मतलब D, 0, 8 मिल रहा है, ठीक है। We are getting this, and when we are adding this 8 0 D 0 8 with G H I, we are getting 9 7 and 5. So of course I की वैल्यू जो है, और ये सारे डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं, तो मतलब I की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 7 होनी चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ 11 आ जाएगा, तो H की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, एंड D प्लस G जो है उनका वैल्यू 9 होना चाहिए, ठीक है जी। चलिए अब हमें D को किसी चीज से मल्टीप्लाई करना है जिसमें पीछे 8 आना चाहिए। 8 कैसे आएगा, 2 4 8 होता है, 2 और 4 दोनों हमारे पास खाली पड़े हैं, वी कैन डू दैट। और 6 3 18 होता है, लेकिन 6 यहाँ ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो 6 हम ले नहीं सकते, ठीक है। और कौन से उसमें आ सकता है, 8 8 1 8 हो सकता है, 8 और 1 भी हमारे पास फ्री है। तो लेट्स टेक कि D जो है, जो B है वो हमारा 2 है, और D जो है वो हमारा 4 है। लेट्स ट्राई टेकिंग दैट। अगर 4 लेंगे तो G हमारा 5 आ जाएगा, है ना। चलिए अभी तो कुछ रिपीट नहीं हुआ है, E 0 है, F 8 है। अच्छा 8 भी नहीं ले सकते हम, क्योंकि F 8 आ गया ना, तो 8 भी नहीं ले सकते, 2 और 4 ही लेना पड़ेगा। 4 2 8, कुछ कैरी नहीं हुआ। अब हमें कुछ ऐसा लेना है जिससे जो मल्टीप्लाई करके आए A और C, वो समथिंग आए 408, ठीक है। A, ये D को हमने 4 रख दिया ना अब यहाँ पे, लेट मी चेंज द कलर ऑल्सो, क्योंकि ये हमने अभी रखा है ये 4, ठीक है। 408 आना चाहिए, B की जगह पे हमने रख दिया 2 और यहाँ पे रख दिया 4, ठीक है। तो समथिंग मल्टीप्लाइड बाय समथिंग शुड इक्वल टू 408, ओके। 40 आना चाहिए, मतलब ऐड करके। और अब हमारे पास A और C की वैल्यू क्या बची, 1 0 जा चुका है, ठीक है, और 2 जा चुका है, और 3 बचा है, ठीक है। तो आई एम टेकिंग 32 इंटू 14। लेट्स ट्राई दिस। 4 2 8, 3 5 12, 2 1 2 आ रहा है, 10 नहीं बन पाएगा, हटा दो इसे। और अगर हम लें 12 इंटू 34, तो क्या आएगा, 4 1 4, 3 2 6 आ गया, और 3 1 3 आ गया, बन गया 8 10 408 बन गया भाई। तो A को हम लिख रहे हैं 1 और C को लिख रहे हैं हम 3। What is the value of A plus B plus C? तो A is 1, B is 2 and C is 3, तो 6 आ गई वैल्यू। 77th क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से। ट्रू स्टेटमेंट है कि 1 are true and one of the statement is false. ओके, तो ट्रू स्टेटमेंट है कि P और Q सेलेक्ट हुए हैं किसी जॉब के लिए,
ठीक है। और क्या स्टेटमेंट है, एट मोस्ट आर एस और टी में से कोई सेलेक्ट हुआ है। पहले कह रहे हैं कि पी और क्यू में से कोई एक जना सेलेक्ट हुआ है और इसमें से आर एस और टी में से कोई 2 जने सेलेक्ट हुए हैं। और ये कह रहा है एटलीस्ट वन ऑफ आर और एस इज सिलेक्टेड फॉर द जॉब। इसका मतलब ये है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो फॉल्स मतलब एटलीस्ट की जगह पे हो सकता है दोनों ही सेलेक्ट हो गए हों। अगर दोनों होंगे तो यहाँ पे दोनों वाली स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगी। तो पी आर और एस में से तो दोनों ही सेलेक्टेड हैं और पी या क्यू में से कोई एक सिलेक्टेड हुआ होगा, है ना। एटलीस्ट 4 पीपल वर सिलेक्टेड फॉर द जॉब, हमें तो 3 पता चले हैं, आर एस और पी या क्यू में से कोई एक, है ना। और एस वॉज सिलेक्टेड फॉर द जॉब, आर और एस था, तो ओनली 2 वी आर गोइंग विद। ठीक है, चलो 80 कर लो पहले। द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटीज आर अरेंज अल्फाबेटिकली इन द रिवर्स ऑर्डर, हाउ मेनी पोजीशंस विल रिमेन अनचेंज्ड। आर नहीं, पी लिखना है पहले, पी आर ई एच ई एन एस आई बी आई एल आई टी आई ई एस, ओ गॉड। अब इसका हमें उल्टा जाना है, तो सबसे पहले मुझे बी दिख रहा है, बी लिख दो यहाँ पे, सी दिख रहा है, सी लिख दो यहाँ पे, फिर ई आ रहे हैं कितने, 1 2 एंड 3, तो 1 2 और 3 एल के नीचे आ रहा है। ठीक है, एच आर लिखेंगे, फिर यहाँ पर आई कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, जे एल भी एल है, 1 एल, एन आर हैविंग, वी आर हैविंग 2 एन्स, ओ पी, क्यू नहीं है, आर हमारे पास 1 है, एस हमारे पास 2 है और टी हमारे पास 1 है। हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। मैं तो 19 ही लिखे हैं, अभी 2 और बचे हुए हैं। एस तो 2 ही थे, पी और आर लिख दिया मैंने, एम नहीं लिखा है, सॉरी। एम एन हमारे पास 2 है ना, ओ पी क्यू आर एस हमारे पास 2 हैं और टी हमारे पास 2 है ना। चलो, अब इन्होंने बोला है हाउ मेनी पोजीशंस विल रिमेन अनचेंज्ड। अब अनचेंज्ड देखो कि कौन सी है, आई की जगह टी है, आई एक ये आई है और एक ये आई है, इनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है, बाकी सबकी पोजीशन चेंज हो गई है, तो ओनली 1 इज हियर आंसर। ओके, 2 क्वेश्चंस बचे हैं। 78, पी क्यू आर एस एंड टी बी दी 5 स्टेटमेंट्स, इफ पी इज ट्रू तो क्यू और एस भी ट्रू होंगे, अगर आर ट्रू है, आर और एस दोनों ट्रू है तो टी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंक्लूडेड, अगर टी ट्रू है तो एट लीस्ट 1 ऑफ पी एंड आर मस्ट बी फॉल्स, या तो आर गलत हो जाएगा या फिर पी गलत हो जाएगा, ये हम कंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि पी के बारे में बात नहीं करी गई है, डायरेक्टली टी से। ठीक है, मतलब ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि एस ट्रू है तो पी भी ट्रू होगा। ठीक है, इफ क्यू इज ट्रू देन पी इज ट्रू, अगर क्यू ट्रू है तो पी ट्रू है, ये भी नहीं कह सकते हम, नीदर नॉर। चलिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। अ क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड को पेंट करा है रेड, ग्रीन और ब्लू कलर में। ठीक है, और ईच पेयर ऑफ द ऑपोजिट फेसेस ऑफ द डायमेंशन respectively, then the cuboid is cut and separated into various cubes, each of side 1 centimeter.
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि 15 स्मॉल क्यूब्स निकलेंगे जिनके ऊपर कोई पेंट नहीं हुआ होगा। एक साइड 7 सेंटीमीटर की है तो उसमें से 5 निकालो, 5 सेंटीमीटर से 5 इंटू 3 इंटू 1 15, हाँ बिल्कुल ठीक है। There are exactly 6 smaller cubes with exactly 2 faces painted with blue and the other with green. फाइव और 7 पे पेंट हुआ है रेड कलर, ठीक है। 7 और 5 सेंटीमीटर्स मतलब उसमें 35 क्यूब्स होंगे, रेड पेंट होगा जिसपे। अब वो कह रहे हैं कि हमें ब्लू एंड अदर विद ग्रीन बताना है, तो ब्लू विल बी 7 इंटू 3 वाला, दैट इज 21 क्यूब्स, और ये है 5 इंटू 3 मतलब 15 क्यूब्स इसके हो गए। लेकिन इन्होंने बोला है कि एग्जैक्टली 2 फेसेस, वन पेंटेड विद ब्लू एंड अदर विद ग्रीन, मतलब ऐसा कोने वाला देखना है हमें जिसमें 5 और 3 और 7 और 3 में 3 कॉमन दिख रहा है मुझे, तो वो कॉमन वाली साइड 3 होगी, उसमें से 2 ही आएंगे बीच वाले, नहीं एक ही बीच में कॉमन होगा, एक साइड जो कि दोनों साइड, एक साइड से ग्रीन होगी एक साइड से ब्लू होगी, बाकी उसके कोई भी साइड पेंटेड नहीं होंगे, क्योंकि कॉर्नर्स तो फिर 3 साइडेड से पेंट हो गया ना, कॉर्नर नहीं लेने हमें, बीच वाला लेना है, ठीक है। और दोनों साइड से तो 6 तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, तो वी आर गोइंग विद द ए पार्ट, ओनली 1 इज करेक्ट। नाउ हमारा जो PYQ था 2023 का वो हमने आज कंप्लीट कर दिया है प्रॉपरली। टुडे वी हैव कंप्लीटेड 2023 CSAT का पेपर। अब हम नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो हम 2024 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय एवरीवन।